Welcome to all of you in this lecture of class 12th chapter current electricity. In this lecture we will study about Ohm's law and we will derive the formula for Ohm's law, means derivation of Ohm's law. We will prove V upon I equal to constant, means Ohm's law V equal to IR. In the previous lecture we established the relation between the current electric current and drift velocity. So we know the relation between current and drift velocity. By using that relation we will derive the formula for Ohm's law. Okay, so actually you know from class 10th what is the Ohm's law. According to Ohm's law, if the physical states of a conductor like temperature, pressure, humidity, etc. remains constant or fixed or unchanged, then the potential difference applied across two ends of the conductor is directly proportional to the electric current flowing through the conductor. Means suppose we have a current, suppose we have a conductor, suppose this is a current conductor, and suppose we apply some potential difference V here, then we know all the free electrons inside the conductor moves from negative end towards the positive end with a drift velocity Vd. Okay, and electric field is established equal to V upon L. We all know about it. Current I, this is plus end, minus end, current is flowing through this conductor. Okay, so then what is Ohm's law? If temperature, main thing is that if temperature, pressure, humidity, temperature, pressure remains constant, physical states, then only the potential difference V applied across the ends of the conductor is directly proportional to current. Means अगर किसी कंडक्टर के टेम्परेचर और प्रेशर में अगर हम कोई चेंज नहीं करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट रहता है, तो कंडक्टर के टू एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड किया जाता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, सो वी कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. Here V is the potential difference applied across two ends of conductor and I is the current flowing through the conductor. Then V equal to IR. We all know this is about Ohm's law, where R is the resistance, and we can say from here the ratio of V upon I equal to R, that is constant. Actually this is Ohm's law. V upon I equal to constant. So here we will prove this Ohm's law also. So you can take the screenshot for the statement of Ohm's law and you can write the law. Okay, so now we will prove this law. Okay, you have to write this one, and now derivation of Ohm's law, we can say derivation of Ohm's law or formula of resistance. Okay, we can say derivation, heading as a derivation of Ohm's law, derivation of Ohm's law or formula for resistance. We will derive the formula for resistance. Okay, so how we will start? इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन, और वी कैन से डायरेक्टली हम कह सकते हैं जो हमने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू माइनस NEA VD. यहां पर मैंने माइनस साइन लिखा है. माइनस साइन केवल इतना शो करेगा कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, मींस करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट. अगर माइनस साइन नहीं भी दिखाया हो किसी बुक में तो जरूरी भी नहीं है, हम आगे अगर माइनस साइन यहाँ लिखा रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी यूज करेंगे. ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इक्वल टू माइनस NEA VD. ओके, नाउ सेकेंड टर्म, अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं. सो नाउ सेकेंड टर्म क्या है, देखिए नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई एम राइटिंग हियर. So formula for drift velocity, we know the formula we derived in the previous lectures. Drift velocity Vd equal to, Vd means drift velocity. Okay, V at subscript d, Vd equal to minus E tau upon
m. This is the formula for drift velocity. E is the electron charge, E capital E electric field, tau is the average relaxation time, and m is the mass of electron. Okay, so now we have to put this value of Vd from here to in equation 1. Okay, I can write from equation 1. So I will be equal to minus NeVd. I am writing just same. Now I equal to minus NEA. In place of Vd we can write minus EE tau upon m. Okay, so now solve it. Then I will be equal to minus minus plus and E into E square A E tau upon m. This is the formula for current. Now we will go one further step. We know electric field E equal to V upon L for a conductor having length L. This is for a conductor having length L, and V is the potential difference applied across the conductor, two ends of conductor. Then electric field equal to V upon L. Then in place of E we can write V upon L. Then what will be the formula for I? Will be equal to, you can check, NE square A, like as same. In place of E you can write V upon L, and tau as same, tau is, and this one is m. Okay, so this will be the formula for I. Now actually what is Ohm's law? Ohm's law is the ratio of V upon I equal to constant. V equal to IR means V upon I constant. Now we have to find the value of V upon I from this formula. We have to find the value of V upon I. So V is there. We have to find the value of I. Then V upon I, you can check V upon I. Then it will become ml, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ अपॉन NE स्क्वायर A tau. You can check. देखिए अगर आप यहाँ से V अपॉन I निकालते हैं तो V को यहाँ ले दीजिए, I को नीचे ले जाइए, ml यहाँ इंटू करिए, ml ऊपर आ जाएगा और NE स्क्वायर A tau नीचे अपॉन में आ जाएगा. So this is V upon I. Okay, so first you can take the screenshot till here. You can take a screenshot, then we will discuss about this one. Okay. Okay, now अब हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले पर. ओके, सो व्हाट इज दिस फॉर्मूला? ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला वी विल डिस्कस ओम्स लॉ. V upon I equal to ml upon NE square A tau. This is the formula. Okay, I have written here. Now V upon I should be a constant. V upon I क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए ओम्स लॉ से. तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, if टेम्परेचर, प्रेशर, दीज आर द फिजिकल स्टेट्स ना. अगर ये टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो. देन देखिए उसके बाद अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो देखिए मास तो इलेक्ट्रॉन का पहले से ही कांस्टेंट होगा. मास पहले से ही कांस्टेंट होगा, मास का तो कोई डिपेंडेंसी है नहीं. तो देखिए लेंथ L कांस्टेंट. L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर. L means here we can write L means length of conductor. Length of conductor. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिक्स है, तो लेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर इट मीन्स लेंथ क्या होगा? यानी कि लेंथ L कांस्टेंट हो जाएगा. देखिए मास तो यहाँ पर पहले से ही कांस्टेंट है. मास क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा पहले से ही. E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करेगा नहीं. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट. अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर हम बढ़ा दें तो हो सकता है कोई वायर पतला हो जाए तो एरिया और लेंथ चेंज हो जाए, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पर लेंथ भी कांस्टेंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा. यस और नो? और साथ में n इज हियर. व्हाट इज n? n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, means number of electrons per unit volume at a fixed temperature pressure. This is also constant. n भी आपका constant हो गया. relaxation time tau. अब देखिए ये बहुत डिपेंड करता है टेम्परेचर. if we increase the temperature, then what will happen? If we increase the temperature, then collisions, free electrons will get more kinetic energy and they collide rapidly. अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा. तो इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन बहुत जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा.
रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो V अपॉन I का रेशियो बढ़ जाएगा मेटल कंडक्टर में, तो इसलिए रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर पर रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा। लेकिन हमने टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रख दें, प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट रख दें, तो फिर हमारा रिलैक्सेशन टाइम जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ है ये भी कांस्टेंट। व्हाट इज टाउ हियर? टाउ इज हियर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। देन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो टाउ होगा हमारा, टाउ भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास ये भी कांस्टेंट है। तो यानी कि फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पर आप देख रहे हैं, ह्यूमिडिटी वगैरह पर, कि मास कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट. So we can say, suppose this is equation 2, then from equation 2, ये कंडीशन क्या है? इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमने कह दिया कि जो V अपॉन I का जो ये रेशियो है ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ, आप इसको V अपॉन I इक्वल टू ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ, और इस रेशियो को आप कह सकते हैं कांस्टेंट. दिस इज द रेशियो, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. कहने का मतलब ये है, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट भी ऐसे बढ़ जाएगा कि दोनों का रेशियो फिर से कांस्टेंट आएगा. यस और नो? अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया तो करंट भी डबल हो जाएगा, कि रेशियो तब भी क्या आ जाएगा? कांस्टेंट. जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मान लो पहले 10 है, करंट मान लो कितना है? 2 है, तो रेशियो कितना हुआ? 10/2 5. अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया 20, तो करंट भी डबल हो जाएगा. कितना? 2 से 4, तो 20/4, तब भी रेशियो कांस्टेंट. यानी कि हम कह सकते हैं कि V अपॉन I का रेशियो क्या होता है? हमेशा ये कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू R. इसी को हम क्या कहते हैं? R, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. बट ये कब है? V अपॉन I का रेशियो तभी कांस्टेंट होगा एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, कुछ फिजिकल स्टेट्स पर. सो दैट इज द ओम्स लॉ. तो यहां से अब ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन हमारा हुआ कि हमने प्रूव कर दिया V अपॉन I को एक कांस्टेंट प्रूव कर दिया. सो वी कैन से प्रूव्ड ओम्स लॉ. ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन. आप इसके लिए एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको नोट कर सकते हैं. फिर हम इस पे डिपेंड करेंगे, डिस्कस करेंगे रेसिस्टेंस पर. ओके, सो नाउ अब हमने इस पे क्या देखा है? देखिएगा, वी हैव डिस्कस्ड V अपॉन I. V अपॉन I इक्वल टू ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ, दैट इज इक्वल टू R, मीन्स resistance, and we can say as a constant, that is equal to constant. Okay, so what is resistance? So resistance R equal to, फॉर्मूला क्या है रेसिस्टेंस के लिए? ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ. ओके, यस और नो? सो हियर अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा, ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है. अब इसमें रेसिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें, अब मैं एक नया टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस करने से पहले टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस की डिपेंडेंसी आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, जिसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटल कंडक्टर्स का, ओके, फॉर मेटल कंडक्टर्स के लिए, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो देन क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे, इट मींस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा. देन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा. क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क पड़ेगा? यस, पड़ेगा, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और भी ज्यादा फ्री होंगे. लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ कंडक्टर, मेटल कंडक्टर, इसमें पहले से ही लो टेम्परेचर पर भी आपके, जनरली हम रूम टेम्परेचर या जो जनरल टेम्परेचर की बात करें तो पहले से ही इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं. ओके, तो पहले से ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर से इसमें फ्री नहीं हो पाएंगे. लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं. यस और नो?
तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेन इफेक्ट होगा रिलैक्सेशन टाइम का, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, इसलिए मेटल कंडक्टर का अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर टाउ डिक्रीज होगा, बिकॉज यू कैन से आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. ओके, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, that's why the resistance of metal conductors increases with increase in temperature, and we will say same change for resistivity also. ओके, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं. सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ तो डिक्रीज होगा ही सेम एज मेटल्स, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने बढ़ जाते हैं सेमीकंडक्टर में, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं. ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा अगर आपके फ्री होंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से. एक्चुअली व्हाट इज करेंट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो इसलिए करंट बढ़ेगा. करंट अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस हमेशा डिक्रीज होगा, क्यों? तो R इक्वल टू V अपॉन आई. अगर करंट अगर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा. तो फॉर सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है. सेमीकंडक्टर्स में आप उसको लिख सकते हैं. ओके, फॉर सेमीकंडक्टर्स, next I am writing here, for semiconductors the resistance decreases with increase in temperature. Semiconductors resistance decreases with increase in temperature. What is the reason? Because the number of free electrons increases. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा इंक्रीज होते हैं, एंड रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज होगा ही. रिलैक्सेशन टाइम से तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन मोर इफेक्टिव हो जाता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज यू कैन राइट, एंड टाउ डिक्रीजेज. बट मोस्ट इफेक्टिव क्या होगा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज more and effective than tau. ओके, मीन्स रिलैक्सेशन टाइम से ज्यादा इफेक्टिव ये हो जाता है, आप समझ लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्री होते हैं. सेम फॉर रेसिस्टिविटी ऑल्सो. यही चेंजेस किसके लिए होंगे, रेसिस्टिविटी के लिए होंगे. अब इसको कैसे समझना है, मैं इस फॉर्मूले को आपको रेसिस्टिविटी के टर्म में बता रहा हूं. ओके, सो यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स. आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं. नाउ प्लीज सी हियर, R equal to, I am rearranging this formula, ml upon ne square a tau. I am writing this as m upon ne square tau into L upon a, or I can write this formula like this. Formula is same, ml upon ne square tau into a. Okay, so this term R equal to this term is known as resistivity or specific resistance. This term is called specific resistance or resistivity. So R equal to rho L upon A. This is the main formula for the resistance, or we can say factors affecting resistance. Here from this formula you can say R directly proportional to length of a conductor. Resistance of a conductor is directly proportional to length. Resistance of a conductor is inversely proportional to area of cross section. Yes or no? And resistance is inversely proportional to relaxation time also from this formula. Okay, because this is the relaxation time term is in rho also, and R is inversely proportional to tau. Means if relaxation time decreases, then resistance increases. Okay, so this is the R equal to rho L upon A. You can note down this point also. Okay, you can take the screenshot. Now so here we have seen that R is equal to rho L upon
A, this is the main formula where rho equal to m upon n e square tau. Yes or no? Means rho is the resistivity of the conductor. Rho is the resistivity of the conductor, and or we can say resistivity, or sometimes we also say the rho as a specific resistance also. Yes or no? And you can check from this formula, rho is inversely proportional to tau also. Means specific resistance does not depends on length, does not depends on area of cross section. Specific resistance only depends upon the relaxation time, and tau depends on temperature. Yes or no? So we can say specific resistance depends on temperature, because relaxation time depends on temperature and nature of material also, and nature of material also, and specific resistance. But resistance on what factors? Resistance depends on what factor? First, R directly proportional to length, because resistance R equal to rho L upon A. Resistance is directly proportional to L. Resistance is inversely proportional to area of cross section. And third, resistance is also inversely proportional to tau. Means here relaxation time. Yes or no? Tau is relaxation time, and it means temperature. Or resistance, we can say resistance depends temperature, because tau is the relaxation time, depends on temperature. And fourth one, resistance also depends nature of material. So resistance also depends the nature of material. Yes or no? So you can note down this one here. Okay, so you can take the screenshot for this one. So in this lecture we derived the formula for Ohm's law, and then we have discussed the factors affecting the resistance and resistivity. In the next lecture we will study the Ohm's law in vector form by introducing the concept of current density. Okay, we will study the Ohm's law in vector form, and that's all for this lecture. Thank you so much.